Good morning, friends. We were referring to Unit 4 of Chapter 2, Sale of Goods Act, Unpaid Seller. In the previous lecture, I explained you who is an unpaid seller. The seller who has not been paid. That means where the terms is as regards to the cash payment, but the buyer fails to pay the price, or if where the goods are allotted on credit and the credit period is over and still the buyer fails to make the payment to the seller, or where the buyer has given a negotiable instrument, and when negotiable instrument has been presented, it got dishonored. In all these circumstances, a seller will be called as an unpaid seller. We have seen what are the rights available with the unpaid seller. Two rights. One, right against the goods, which is a subject matter of the contract, and a right against the buyer. Right against the goods, we have seen two possibilities. One is where the property in the goods, that is ownership, is passed to the buyer, and a second case where the ownership has not been passed to the buyer. In the first case, where the ownership has been passed to the buyer, what are the rights available with the unpaid seller is: first, right of lien; second, right of stoppage of goods in transit; and third one is right of resale. When the ownership has not been transferred to the buyer, what are the rights available with the unpaid seller is withholding the goods, withholding the delivery of the goods. That means he will refuse to give the delivery of the goods to the buyer. And other rights which are available to the normal seller, all those rights will be available to this unpaid seller also. And right against the buyer is, अगर buyer ने breach किया है, payment नहीं दे रहा है, तो seller के पास क्या rights available है against the buyer will be to file a suit against the buyer for recovery of the price, for recovery of the damage, for recovery of the interest, and to cancel the contract. So these are some of the rights available with the unpaid seller against the buyer, where the buyer has done the breach. In the previous lecture, we have covered two rights available with the unpaid seller. First one is right of lien. This right can be exercised when the goods are still in the possession of the seller. He can retain the possession of the goods. Right of lien is nothing but custody of the goods. The seller will refuse to give the custody of the goods to the buyer because he has not paid the amount. Right of lien is lost when the goods are delivered lawfully to the buyer, or when it is delivered to the agent of the buyer, or when it is delivered to the transporter and the document of title has been taken in the name of the buyer. In that circumstances, right of lien is lost. Second one is right of stoppage of goods in transit. We have seen this right can be exercised when goods are parted from the seller and the goods are in transit, and those goods have not reached to the point of, goods have not reached to the buyer. The goods are still in the transit. In that circumstances, this right of stoppage of the goods in transit can be exercised by the unpaid seller. However, this right can be exercised subject to the condition that buyer should become an insolvent. यानी गुड्स सेलर के यहाँ से निकल गए, बायर तक पहुंचे नहीं है, गुड्स अभी भी ट्रांसपोर्ट के अंदर है, और सेलर को न्यूज मिली है कि बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट. However, right of stoppage of goods in transit is lost when the goods are given in the possession of the buyer, or if the goods are given to the agent of the buyer, or where the transporter is acting as an agent of the buyer and the goods are delivered to that particular transporter. In that circumstances, the right of stoppage of goods in transit is lost. So these two rights we have already covered in the previous lecture. Today we are going to continue with that.
In today's lecture, first you have to understand the distinction between right of lane and right of stoppage of goods in transit. I told you that right of lane कब exercise होगा, जब goods unpaid seller के पोजीशन में है, लेकिन जैसी गुड्स ट्रांसपोर्टर के पास चला जाएगा उस सर्कमस्टेंसेस में राइट ऑफ लेन खत्म हो जाएगा, एंड देन द ओनली राइट अवेलेबल विद द अनपेड सेलर इज टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट. तो राइट ऑफ लेन क्या है? टू रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स. और राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट क्या है? टू रिगेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स. व्हाई रिगेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स? बिकॉज आपका पोजीशन जो आपके पास था वो you have lost that position because you have given the goods in the position of the transporter. So the moment you will give the position of the goods to a transporter, the right of lane is lost. If again you want to regain the position, that means अगर आपको वो goods को stop करके फिर से अपने custody में लेना है, तो that will be called as a regaining the position of the goods. तो right of lane is nothing but के to retain the position of the goods, or right of stoppage of goods in transit is nothing but to regain the position of the goods, because retain the position of the goods you have lost. वो goods ट्रांसपोर्टर के पोजीशन में चला गया है, उससे फिर आपको मंगाना है, तो you will call it as to regain the position of the goods. Further, right of lane can be exercised even where the buyer is solvent. Buyer insolvent है तो definitely right of lane can be exercised, but right of lane even can be exercised where the buyer is solvent and buyer has failed to make the payment. कंडीशन क्या है कि कैश पेमेंट है, मैंने बिल आपके नाम से बना दिया है, ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि पहले आप पैसा लेके आओ. आप सॉल्वेंट हो लेकिन आप पैसा नहीं दे रहे हो, आप इंसॉल्वेंट नहीं हो, तो आप सॉल्वेंट है उसके बावजूद भी मेरे पास ये राइट है कि आई कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लेन. आई कैन रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स. दैट मीन्स आई विल रिफ्यूज टू गिव द कस्टडी ऑफ द गुड्स इन योर पोजीशन. तो राइट ऑफ लेन कैन बी एक्सरसाइज वेयर द बायर इज सॉल्वेंट और बायर इज इंसॉल्वेंट. लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट. अगर आपने ट्रांसपोर्टर को माल दे दिया विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल, you have not reserved your right on those particular goods and you have given the goods in the position of the transporter, and if the buyer is solvent, so you cannot exercise this right. आप ट्रांसपोर्टर को फोन करके ऐसा नहीं बोल सकते कि आप गुड्स को ट्रांजिट में स्टॉप करो और वापस लेके आओ. दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट. तो लेन कैन बी एक्सरसाइज इन बोथ द सर्कमस्टेंसेस, but stoppage can be exercised only when the buyer has become insolvent. So just we'll go through the basic difference between the lane and stoppage, what they have given. The essence of right of lane is to retain the position. I told you that. Okay, right of lane is nothing but to retain the position, to keep the custody of the goods in your favor. So that is a retain the position. Whereas stoppage is to regain the position. The essence of stoppage is to regain the position. Regain फिर से लेना. आपने पोजीशन किसी और को दे दिया और उससे फिर से आपके हाथ में कस्टडी लेना है, तो that will be called as a regain the position. So right of lane is to retain the position and stoppage is to regain the position. Right of lane can be exercised, what they are given, seller should be in the position of the goods under lane. In order to exercise the right of lane, it is necessary that the goods should be in the position of the seller. Obviously, अगर goods seller के पोजीशन में नहीं है या सेलर ने किसी एजेंट को ऑथराइज किया और वो एजेंट के कस्टडी में गुड्स नहीं है, so then there is no question of exercising a right of lane. So right of lane can be exercised only when the goods are in the possession of an unpaid seller. Once the possession is lost, this right is also lost. So in order to exercise the right of lane, it is necessary that के goods seller के possession से निकलना नहीं चाहिए. अगर सेलर
या उसके कोई एजेंट या फिर जो वेयर हाउस में उसने वॉरफिंगर के पास वो गुड्स रखे, तो उनके हाथों में से अगर वो गुड्स का पोजीशन निकल गया तो देन राइट ऑफ लेन इज ऑल्सो लॉस। स्टॉपेज के बारे में क्या बोला है? इन स्टॉपेज इन ट्रांजिट द सेलर शुड हैव पार्टेड विद द पोजीशन। सेलर शुड हैव पार्टेड विद द पोजीशन, यानी सेलर के हाथों से गुड्स निकल गए। पोजीशन शुड बी विद द कैरियर। सेलर के हाथों से गुड्स निकल गए, पोजीशन में से गुड्स निकल के किसके पास चला गया है? ट्रांसपोर्टर के पास। बायर हैज नॉट एक्वायर्ड द पोजीशन, और अभी तक बायर ने उस गुड्स का पोजीशन नहीं लिया है, यानी गुड्स ट्रांजिट में है, तो देन यू कैन एक्सरसाइज अ राइट ऑफ स्टॉपेज। राइट ऑफ लेन कैन बी एक्सरसाइज इवन व्हेन द बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट, दैट मींस बायर इज सॉल्वेंट, यानी राइट ऑफ लेन कैन बी एक्सरसाइज वेयर द बायर इज सॉल्वेंट और बायर इज इनसॉल्वेंट, बट स्टॉपेज in transit can be exercised only when the buyer become insolvent, यानी stoppage can be exercised only in one condition कि goods transit में होना चाहिए और buyer insolvent चाहिए। लेकिन right of lane can be exercised in both the cases, buyer is solvent और buyer is insolvent। लेकिन एक चीज जरूरी क्या है कि goods should be in the possession of the seller और goods should be with the agent authorized by the seller। Right of lane precedes the right of stoppage in transit. Right of stoppage in transit begins when the right of lane is lost. That means right of lane ends. Obviously, right of stoppage कब start होगा? जब right of lane खत्म होगा। अगर right of lane खत्म हुआ ही नहीं है तो stoppage का बारी नहीं आएगा, stoppage का condition ही नहीं आएगा। तो when the right of lane stops, right of lane is defeated, then right of stoppage starts. So, right of lane will always precede right of stoppage and right of stoppage always succeeds the right of lane. So, these are the difference between right of lane and right of stoppage. Then, it says that okay, what will be the effect of subsale or pledge by the buyer? Effect of subsale or pledge by the buyer का meaning क्या है कि I am an unpaid seller and you are a buyer, और आपने वो गुड्स किसी और को सेल कर दिया है जो आप मेरे से परचेज करने वाले हो। होता है ना, बाइस वक्त क्या होता है कि I draw the document of title in your favor and you are entitled to take the goods, but in the meanwhile if some other buyer comes to you, you give that document of title which I have given to you to that second buyer, और उसको आप क्या बोलते हो कि वो मेरे पास से ले जाए गुड्स, he can take the goods from me। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, मैंने आपको माल बेचा, आपने किसी और को माल बेच दिया, लेकिन आपने मेरे यहां से डिलीवरी नहीं दी। आपने मुझे इंस्ट्रक्शन दे दिया कि वो डिलीवरी सेकेंड बायर को देना है। जैसा I am sitting in Lucknow, you are sitting in Jalgaon. You have ordered certain goods. मैंने वो कैरियर में गुड्स डाल दिए, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपके नाम पे ड्रॉ किए, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की कॉपी आपके पास है, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की कॉपी आपने आपके सेकंड बायर को दे दी जिसने वो गुड्स आपसे लिए। जो गुड्स आपने मेरे से लिए वो सेकंड बायर ने गुड्स आपसे लिए। तो आप क्या करते हो? आप instead of going to railway for taking the delivery of the goods, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आप सेकंड बायर को दे देते हो और उसको बोलते हो कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल लो एंड यू टेक द डिलीवरी ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स फ्रॉम द रेलवे। तो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन, डबल ट्रांसपोर्टेशन का सेविंग होगा। वो क्या करेगा? मैंने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपको दिया, आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सेकंड बायर को दिए, सेकंड बायर डायरेक्टली रेलवे में जाएगा एंड ही विल शो दैट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। I told you what is a document of title? It entitles the holder to take the delivery of the goods. तो रेलवे वाला कुछ इंक्वायरी नहीं करेगा, रेलवे वाला क्या देखेगा कि जिसके पास वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है उसको वो गुड्स की डिलीवरी दे देगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ सबसेल। मैंने गुड्स आपको सेल किए लेकिन डिलीवरी नहीं दिए, आपने आगे वो गुड्स को बेच दिया है और आपने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो गुड्स सेकेंड बायर को देना है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ सबसेल।
एंड व्हाट इज अ प्लेज, यू आर अवेयर विथ व्हाट इज अ प्लेज, जहां पे आप आपके गुड्स विच इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उसको किसी के पास प्लेज रख के आप उससे पैसा बोरो करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेज, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एन इनकम्बरेंस और चार्ज। तो वो बोल रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट, इस कंडीशन में क्या होगा, जो गुड्स को आपने आगे बेच दिया है, जो आपने मेरे से लिया है और आपने आगे बेच दिया है, या फिर वो गुड्स को आपने किसी और के पास प्लेज रख दिया है, तो उस केस में इफ आई एम एन अनपेड सेलर, यानी आपने मेरे दुकान से एक टीवी सेट परचेज किया, ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर, ओनरशिप हैज नॉट बीन ट्रांसफर, वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर, इट्स नॉट रिलेवेंट। अगर आपने कोई गुड्स मेरे यहां से परचेज किए और वो गुड्स आगे आपने किसी और को बेच दिया और उसको बोला कि आप मेरे दुकान पे से वो गुड्स को ले लो, बट आई हैव नॉट बीन पेड एंड माय कंडीशन इज व्हाट, कि मुझे आप पहले पेमेंट लाके दो, देन आई एम गोइंग टू गिव यू द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस वेदर आई कैन एक्सरसाइज अ राइट ऑफ लेन ओवर दैट पर्टिकुलर गुड्स विच आई एम सपोज टू गिव इट टू द सेकेंड बायर। तो क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज। सबसेल क्या है कि मैंने आपको गुड्स बेचा, आपने किसी और को, मैंने आपको गुड्स जो बेचा उसे बोलेंगे सेल, और आपने वो गुड्स किसी और को सेल कर दिया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ सबसेल। आपने मेरे यहां से डिलीवरी नहीं ली है, मगर मुझे डिलीवरी वो सेकेंड बायर को देना है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ट्राई टू रिमेंबर दैट। तो दिस ट्रांजेक्शन विल बी कॉल्ड एज अ सबसेल। तो इस पे इफेक्ट क्या होगा, अगर ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं तो अनपेड सेलर के राइट्स रहेंगे या नहीं रहेंगे। कौन से राइट्स, जो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट ऑफ लेन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज। वो क्या बोल रहा है, द राइट ऑफ लेन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय द बायर सेलिंग और प्लेजिंग द गुड्स अनलेस द सेलर हैज असेंटेड टू इट, अनलेस द सेलर हैज असेंटेड टू इट। This is based on the principle that the second buyer cannot stand in a better position than the seller। यानी मैंने आपको कोई गुड्स दी है, आपने मेरे यहां से बिल बना लिया, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपके नाम से मैंने बना दिया, मगर मैंने आपको वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिया नहीं है। मगर मेरी कंडीशन क्या है कि पहले आप पेमेंट लेके आओ, देन आई एम गोइंग टू गिव द डिलीवरी टू यू। इन द मीनवाइल आपने वो गुड्स किसी और को बेच दिए, तो क्या मैं राइट ऑफ लेन अभी भी यूज कर सकता हूं? ऑब्वियसली आई कैन यूज दैट। आई विल रिफ्यूज टू गिव द डिलीवरी टू द सेकेंड बायर, जिसको आपने गुड्स बेचे हैं, मैं उसको रिफ्यूज कर दूंगा डिलीवरी देने से। या फिर मैंने ट्रांसपोर्ट में माल डाल दिया है, सब्सिक्वेंटली वही गुड्स आपने किसी और को बेच दिया है और मुझे न्यूज आती है कि आप इंसॉल्वेंट हो गए, तो क्या मैं राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट यूज कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकता हूं। मैंने आर्को ट्रांसपोर्ट में माल डाले, जो गुड्स की डिलीवरी आपको देनी थी, आपने वो गुड्स डिलीवरी लेने से पहले किसी और को बेच दिया और मुझे न्यूज आ गई कि आप इंसॉल्वेंट हो गए, तो क्या मैं वो गुड्स स्टॉप कर सकता हूं ट्रांजिट में? तो बिल्कुल कर सकता हूं। यानी दोनों राइट में इस्तेमाल कर सकता हूं, राइट ऑफ लेन और राइट ऑफ स्टॉपेज। राइट ऑफ स्टॉपेज कब यूज करूंगा? जब राइट ऑफ लेन खत्म हो जाएगा, लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज कब यूज कर पाऊंगा? ओनली व्हेन द बायर बिकम इंसॉल्वेंट। तो यहाँ पे राइट ऑफ लेन का क्या बोला है कि मैंने आपको गुड्स सेल की है, कस्टडी दी नहीं है, आपने वो गुड्स किसी और को बेच दिया और आपने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो गुड्स सामने वाले सेकेंड बायर को डिलीवर कर देना, तो क्या मैं डिलीवरी रिफ्यूज कर सकता हूं? तो बिल्कुल रिफ्यूज कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पैसा अभी मिला नहीं है या फिर चेक बाउंस हो गया। स्टॉपेज में भी वही केस, मैंने आपको गुड्स दिए, ट्रांसपोर्टर को दिए आपको देने के लिए, आपने वो गुड्स सब्सिक्वेंटली कोई सेकेंड बायर को सेल कर दिए और मुझे इन मीनवाइल नोटिस आया कि आप इंसॉल्वेंट हो गए, तो क्या मैं गुड्स को स्टॉप कर सकता हूं ट्रांजिट में? तो बिल्कुल कर सकता हूं। लेकिन ये कब कर सकता हूं? अगर मैंने वो सेकेंड बायर का एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया है। तो अगर आपने मुझे ऐसा बोला कि सेकेंड बायर को गुड्स डिलीवर्ड कर देना और सेकेंड बायर को मैंने एक्नॉलेजमेंट दे दिया,
उसको मैंने बोल दिया, कम्युनिकेट कर दिया कि हाँ आप आके मेरे यहां से गुड्स की डिलीवरी लेके जाओ, या फिर ट्रांसपोर्टर के पास माल है और सेकंड बायर को मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आप गुड्स की डिलीवरी ले लेना है, या फिर मैं ट्रांसपोर्ट में माल डाल रहा हूं आप उसकी डिलीवरी ले लेना, यानी सेकंड बायर को मैंने अपना कंसेंट दे दिया है, तो उस सर्कमस्टेंसेस में राइट ऑफ लेन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट आई विल लूज दोज राइट्स, आई कैन नॉट एक्सरसाइज दैट। हाउएवर इफ आई हैव नॉट गिवन एन असेंट और एक्नॉलेजमेंट टू द सेकंड बायर, I will still be in a better position. I can utilize the right of lane and right of stoppage in transit if the first buyer fails to make the payment or first buyer become insolvent. What it says? A sold certain goods to B of Mumbai and the goods are handed over to the railways for transmission to B. In the meantime, B sold the goods to C for a consideration. B become insolvent. A can still exercise his right of stoppage of goods in transit. मैंने रेलवे में माल डाला for the purpose of delivering it to the first buyer. First buyer in the meantime has sold the goods to the second buyer and taken the money from him. In the meanwhile, I got the news that first buyer has become insolvent and I have not given any assent or acknowledgement to the second buyer. So whether I can exercise right of stoppage of goods in transit? The answer is yes. I will stop the goods in transit and bring them back, regain the possession of the goods. Exceptions. कहाँ पे I will lose these rights, right of lane और राइट ऑफ स्टॉपेज, व्हेन आई लूज दीज राइट्स, तो क्या बोल रहा है? व्हेन द सेलर हैज असेंटेड टू द सेल, मॉर्गेज और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स मेड बाय द बायर. ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट इफ द सेलर गिव्स एन असेंट और एक्नॉलेजमेंट टू द सेकेंड बायर, देन आई विल लूज दीज राइट्स. मैं फिर राइट ऑफ लेन इस्तेमाल नहीं कर सकता. अगर मुझे ये राइट इस्तेमाल करना है तो आई शुड नॉट गिव एन एक्नॉलेजमेंट और एन एसेंट टू द सेकेंड बायर. एक्नॉलेजमेंट एंड एसेंट का मीनिंग है कि अगर मैंने सेकेंड बायर को कंफर्मेशन दे दिया कि आपके बिहाफ में मैं गुड होल्ड कर रहा हूं, आप गुड्स लेके जाओ, या फिर मेरे वेयरहाउस में जो गुड्स पड़े हैं वो आपके, आप लेके जाओ, मुझे इंस्ट्रक्शन मिल गया है कि आपको गुड्स की डिलीवरी देना है, तो in these circumstances I will lose that right. I cannot exercise the right of lane or stoppage. What it says? Example: A entered into a contract to sell cartoons in possession of the wharfinger. warehouse के अंदर मेरा माल रखा हुआ है. A entered into sell cartoons to B and agreed with B that the price will be paid to A from the sale proceed recovered from his customer. ए ने गुड्स कार्टून्स बी को बेचे और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ है कि बी अपने कस्टमर से पैसा रिकवर करके ए को देगा. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. आई एम ए, यू आर बी एंड सी इज योर कस्टमर. आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है कि मेरे वेयरहाउस में कुछ कार्टून्स है जो मैंने आपको सेल किए. आप उसका पैसा कब देंगे? तो आपने बोला कि आप आपके कस्टमर से रिकवर करके वो पैसा मुझे देंगे. दिस इज अ एंटायर कॉन्ट्रैक्ट. माल कहाँ पे? वेयरहाउस के अंदर है. किसका है? मेरा है. मैंने किसको बेचा? आपको बेचा. पैसा आप कब देने वाले हो? आप आपके कस्टमर से रिकवर करके वो मुझे पैसा देने वाले हो. आगे क्या हुआ? नाउ बी सोल्ड गुड्स टू सी, दैट इज आपने आपके कस्टमर्स को वो गुड्स बेच दिए एंड गुड्स अभी भी वेयरहाउस में ही है, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हो रहा है. डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल या फिर यू कैन कॉल इट एज मैंने आपको बेचा, आपने आगे बेचा, लेकिन गुड्स अभी भी एक ही जगह है, वेयरहाउस के अंदर है. तो मैंने आपको गुड्स बेचे, आपने कस्टमर को बेच दिए. नाउ बी सोल्ड द गुड्स टू सी एंड सी ड्यूली पेड टू बी. सी ने बी को पैसा दे दिया, लेकिन अभी भी वो गुड्स कहां पे है? वेयरहाउस के अंदर ही है. मैं कार्टून आपको दूंगा, आप वो कार्टून सी को देंगे, या फिर अगर आपने मुझे बोला कि डायरेक्टली वो कार्टून सी को दे देना तो मैं डायरेक्टली कार्टून सी को दे दूंगा.
अब हुआ क्या, नाउ बी सोल्ड अ गुड्स टू सी एंड सी ड्यूली पेड टू बी, बट एनी हाउ बी फेल टू मेक द पेमेंट टू ए, लेकिन बी ने ए को पेमेंट नहीं दिया। कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे ही हुआ था कि बी सी से पैसा रिकवर करेगा और मुझे देगा, लेकिन बी ने मुझे पैसा नहीं दिया। आगे क्या हुआ, ए वांट टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ लेन, क्या ए राइट ऑफ लेन एक्सरसाइज कर सकता है? तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा उसके हिसाब से कर सकता है, लेकिन अगर ए ने सी को कंफर्मेशन दे दिया था कि वो गुड्स डिलीवर्ड करेगा तो वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो यहां पे क्या बोल रहा है, ए वांट टू एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लेन एंड ऑर्डर्ड द वॉरफिंगर नॉट टू मेक डिलीवरी टू सी, held that the seller has assented to resell the goods by the buyer to the sub buyer. As a result, A's right of lane is defeated. अब इस केस में क्या हुआ कि A ने ऑलरेडी C को कंफर्मेशन दे दिया था कि मैं आपको गुड्स की डिलीवरी दे दूंगा। तो इस केस के अंदर seller cannot exercise the right of lane because he has already given a consent to the second buyer. However, अगर वो second buyer को consent नहीं देता था, in that case he was in a better position. He might have utilized a right of lane. Second क्या बोल रहा है, when a document of title to the goods have been transferred to the buyer and the buyer transfer the document to a person who has bought the goods in good faith and for value, that is for price, then the provision of subsection 1 stipulates as follows. अगर आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर के नाम से ड्रॉ किया है और बायर ने वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसी और को दे दिया, तो उस सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा, वो क्या बोल रहा है, इफ द लास्ट मेंशन ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ सेल, राइट ऑफ लेन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज डिफीटेड। दैट मीन्स इफ यू हैव गिवन अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द बायर, दैट मीन्स यू हैव ड्रॉन द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इन द नेम ऑफ द बायर, और बायर ने आगे वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसी और को दे दिया है, still you have lost both the rights, क्योंकि गुड्स ऑलरेडी आपने ट्रांजिट में दे दिया है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अगर आपने बायर के नाम से ड्रॉ किया है तो ट्रांजिट वहीं पे खत्म हो गया, तो यू कैन नॉट एक्सरसाइज द स्टॉपेज इन ट्रांजिट ऑल्सो। राइट ऑफ लेन तो पहले यू हैव लॉस्ट और राइट ऑफ स्टॉपेज भी नहीं कर सकते। यानी आपने किसी को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिया, उसने आगे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसी और को दे दिया, सेकेंड बायर को दे दिया फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। इन दैट सर्कमस्टेंसेस ऑल्सो द सेलर कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ लेन और राइट ऑफ स्टॉपेज। अगर वो क्या बोल रहा है, इफ द लास्ट मेंशन ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ सेल, राइट ऑफ लेन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज डिफीटेड। यानी अगर वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के अंदर सेल लिखा हुआ है तो देन आई विल हैव टू गिव द डिलीवरी ऑफ द गुड्स और द ट्रांसपोर्टर विल हैव टू गिव द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द सेकंड बायर। वो बोल रहा है इफ द लास्ट मेंशन ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ प्लेज, यानी मैंने आपको गुड्स दिए, आपने आगे गुड्स बेचे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ लास्ट मेंशन सेल, दैट विल बी सेल। सेकंड क्या बोल रहा है, इफ द लास्ट मेंशन ट्रांसफर, यानी जो सेकेंड ट्रांजेक्शन हुआ है वो क्या है, इज बाय वे ऑफ प्लेज, यानी मैंने गुड्स आपको सेल किए, एक्चुअली फिजिकली आपको दिए नहीं है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिया है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू आपने गुड्स किसी और को बेच दिए, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ लास्ट मेंशन सेल। मैंने आपको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिया है और वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपने किसी और के पास प्लेज रख के उनसे पैसा बोरो किया, तो ये बोला जाएगा लास्ट मेंशन प्लेज। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपके नाम से ड्रॉ किया या आपको दिया, आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसी और को दे दिया और गुड्स बेच दिए, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ सेल। मैंने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपको दिया, आपने वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसी के पास प्लेज रख के उससे वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के बेस पे पैसा उठा लिया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्लेज, दैट मीन्स लास्ट मेंशन प्लेज। तो इस केस में क्या हो रहा है,
Unpaid seller rights of lien and stoppage only be exercised subject to the right of pledgee. That means आपके rights will not be superior to the rights of pledgee. Pledgee क्या करेगा, पहले उसका पैसा रिकवर करने की कोशिश करेगा with the help of that document of title which the first buyer has given to the pledgee, and only then the amount has been recovered by the pledgee, और excess amount रहता है तो only that excess amount मिलेगा unpaid seller. यानी हुआ क्या कि फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, मैंने आपको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिया और आपने वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सेकंड बायर को दे दिया, तो मेरे राइट्स खत्म हो जाएंगे, मुझे गुड्स की डिलीवरी देनी पड़ेगी. सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि मैंने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपको दिया और आपने वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के बेस पे किसी के पास प्लेज रख के उससे पैसा ले लिया, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. अगेन आई विल लूज माई राइट्स. इसमें होगा क्या, मुझे गुड्स की डिलीवरी आपको देना पड़ेगी, आप वो गुड्स बेच के पैसा पहले प्लेजी का चुकाएंगे और उसके बाद कुछ पैसा बचता हो तो उस पर अनपेड सेलर का हक रहेगा. यानी ये दोनों केसेस में, सबसेल और प्लेज, ये दोनों केसेस में क्या बोल रहा है कि आई विल लूज माई राइट्स अगर आई हैव गिवन एन एसेंट टू द सेकेंड बायर, और इफ आई हैव गिवन अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द फर्स्ट बायर एंड द फर्स्ट बायर हैज गिवन अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द सेकेंड बायर. In both these cases, the unpaid seller will lose the right of lien and right of stoppage. ये दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि मैं खुद होके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा हूं, क्योंकि मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं कि आप मेरा पैसा दे देंगे. हालांकि आपने मेरा पैसा अगर नहीं दिया तो ये राइट मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता. फिर मुझे कौन से राइट्स के ऊपर जाना पड़ेगा, सेकेंड राइट, राइट अगेंस्ट द बायर फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी ऑफ द प्राइस. गुड्स की डिलीवरी मुझे देनी पड़ेगी. अब पैसा तो मुझे वसूल करना है, तो फिर मैं गुड्स वापस नहीं ले सकता हूं, मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा. आई विल हैव टू फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ द प्राइस एंड दैट सूट इज राइट अगेंस्ट द बायर, जो अभी अपन देखने वाले. गॉट इट और नॉट? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अनपेड सेलर के पास है राइट ऑफ लेन, राइट ऑफ स्टॉपेज. व्हेन दिस राइट विल बी लॉस्ट, right of lien will be lost when the goods have been delivered to the buyer or agent of the buyer. When the right of stoppage is lost, when the goods are given to the transporter and buyer has not become insolvent. However, if the buyer has become insolvent and if transit comes to an end, in that case also I cannot exercise the right of stoppage. The goods should be in transit and the buyer should become insolvent. Only in these circumstances I will be entitled to exercise the right of lien. right of stoppage. बराबर. सेकेंड क्या बोल रहा है कि अगर सबसेल होता है, फर्स्ट बायर ने सेकेंड बायर को माल बेच दिया, तो whether still I can exercise the right of lien or stoppage? Yes, I can exercise the right of lien and stoppage, provided I have not given an assent to the second buyer, or I have not drawn a document of title to you and you have not given that document of title to the second buyer. लेकिन अगर मैंने सेकेंड बायर को कंसेंट दे दिया है तो मुझे डिलीवरी देनी पड़ेगी. आई विल लूज द राइट. सिमिलरली अगर मैंने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपके नाम से ड्रॉ किए, दैट मीन्स मैंने आपको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया, ओनरशिप आपके हाथ में, आपने वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसी और को दे दिया, तो दैट केस ऑल्सो आई विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ लेन और राइट ऑफ स्टॉपेज. अब आते थर्ड राइट पे. तीन राइट्स है. When the ownership is transferred, you have three rights. Two rights, right of lien, right of stoppage, that we have covered. Now the third right, right of resale. When I can exercise this right of resale, तो वो क्या बोल रहा है? Unpaid seller has the direct right to resell the goods in the following circumstances. Now just try to understand the chronology. Right of retain, right of stoppage, right of resale. अगर right of lien है तो there is no question of stoppage, क्योंकि अगर आपके पास ही कस्टडी है, ट्रांसपोर्टर को आपने गुड्स दिए नहीं है
तो then there is no question of exercising right of stoppage. You will exercise first right of lane. अब बायर आपको पैसा नहीं दे रहा है तो आपको वो गुड्स पे से तो पैसा रिकवर करना है, तो यू विल एक्सरसाइज फ्रॉम राइट ऑफ लेन टू थर्ड राइट, राइट ऑफ रीसेल. आप वो गुड्स बेच के अपना पैसा रिकवर करेंगे. अगर राइट ऑफ लेन खत्म हो गया है, डिफीट हो गया है, स्टॉप हो गया है, क्यों स्टॉप हो गया है? क्योंकि यू हैव गिवन द पोजीशन ऑफ द गुड्स टू अ ट्रांसपोर्टर and in the meanwhile you have received a notice that buyer has become insolvent. In that circumstances you will stop the transporter where he is. You will try to regain the goods. Again आप goods को वापस अपने पास मंगा लोगे, यानी फिर से goods आपके कस्टडी में आ गए और फिर से अब आपको आपका पैसा रिकवर करना है. तो कैसा रिकवर करेंगे? अगेन यू विल एक्सरसाइज द राइट ऑफ रीसेल. तो राइट ऑफ लेन एंड राइट ऑफ रीसेल और राइट ऑफ स्टॉपेज, ब्रिंग बैक द गुड्स एंड अगेन रीसेल द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी ऑफ द प्राइस. तो हियर यू आर एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ रीसेल. रीसेल के राइट्स में क्या बोल रहा है? अनपेड सेलर हैज द डायरेक्ट राइट टू रीसेल द गुड्स इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. डायरेक्ट राइट का मीनिंग है कि आपको सेलर को बायर को बताने की जरूरत नहीं है कि आप गुड्स बेच रहे हो. वो कब आप कर सकते हो? जैसे कि आपके पास गुड्स है, बायर पैसा नहीं दे रहा है, आप माल बेच सकते हो, आपको बायर को बताने की जरूरत नहीं है. वो कब कर सकते हो? वेयर द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर. गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर के है तो अनपेड सेलर को बायर को बताने की जरूरत नहीं है कि वो गुड्स सेल कर रहा है क्योंकि आपने पेमेंट नहीं दिया. Seller doesn't have to inform to the buyer. Second, where the unpaid seller has expressly reserved his right of resale. Expressly reserved his right of resale यानी already transaction entered करते वक्त ही सेलर ने बायर को बता दिया था कि अगर आप पेमेंट नहीं दोगे तो मैं माल किसी और को सेल कर दूंगा. दो I have transferred the ownership in your name. That means he has expressly reserved the rights. जैसे कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अगर सेलर ने अपने नाम से लिए या फिर ट्रांसपोर्टर को इंस्ट्रक्शन दिया है कि पहले पैसा लेना फिर माल देना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेलर अपने राइट्स रिजर्व रख रहा है. तो ऑलरेडी इसका मीनिंग क्या है कि सेलर ने बायर को इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर बायर पेमेंट नहीं देगा तो सेलर विल सेल द गुड्स. तो ये दो सर्कमस्टेंसेस में सेलर बिना बायर को बताए गुड्स सेल कर सकता है. पहला, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है. दूसरा, अगर सेलर ने ऑलरेडी अपने राइट्स फॉर रीसेल रिजर्व रखे. लेकिन सेकंड केस क्या बोल रहा है? लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के नहीं है या फिर सेलर ने एक्सप्रेस राइट रिजर्व नहीं रखे, राइट ऑफ रीसेल को एक्सप्रेसली रिजर्व नहीं रखा है, यानी पहले से इन्फॉर्म नहीं किया है, लेकिन अब बायर तो पेमेंट दे नहीं रहा है, तो क्या अनपेड सेलर वो गुड्स को सेल कर सकता है? तो आंसर इज यस, मगर उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए दैट वी आर गोइंग टू डिफर. इन अदर केस द अनपेड सेलर, अदर केस यानी गुड्स पेरिशेबल नेचर के नहीं है और सेलर ने अपने राइट्स रिजर्व नहीं रखे, ये अदर केसेस. द अनपेड सेलर हैज अ राइट टू रीसेल द गुड्स बाय फॉलोइंग प्रोसीजर. तो यहाँ पे उसको कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे. व्हाट आर द प्रोसीजर? अनपेड सेलर शुड गिव अ नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स एंड एडिशनल टाइम फॉर पेमेंट. अनपेड सेलर बायर को नोटिस देगा और इन्फॉर्म करेगा कि आपने अगर 2 दिन 3 दिन डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द सेल ट्रांजेक्शन, ही विल गिव अ सफिशिएंट टाइम टू द बायर एंड विल इन्फॉर्म हिम दैट कि अगर आपने 2 दिन 3 दिन में पेमेंट नहीं दिया तो मैं गुड्स को सेल कर दूंगा. तो दिस इज अ फर्स्ट प्रोसीजर विल बी अडॉप्टेड बाय द अनपेड सेलर. क्या बोल रहा है? Unpaid seller should give
a notice to the buyer of his intention to resell the goods and additional time for payment. अनपेड सेलर बायर को इन्फॉर्म करेगा कि he will sell the goods if the buyer fails to make the payment in the coming 2 days. तो अगर प्री इन्फॉर्म करने के बाद भी अगर वो पर्टिकुलर बायर पेमेंट नहीं देता है, कौन से केस में? अगर गुड्स नॉन पेरिशेबल नेचर के हैं और अनपेड सेलर ने अपने राइट एक्सप्रेसली रिजर्व नहीं रखे हुए, तो इस सर्कमस्टेंसेस में अनपेड सेलर बायर को इन्फॉर्म करेगा कि मैं आपको एडिशनल टाइम दे रहा हूं, इस एडिशनल टाइम में आप पेमेंट दे दो। अगर आप पेमेंट नहीं देते हो तो जो गुड्स मेरे कस्टडी में है वो गुड्स मैं आगे रीसेल कर दूंगा। तो ऐसा आपको नोटिस बायर को देना पड़ेगा। इफ द बायर डज नॉट पे द अमाउंट विद इन अ रीजनेबल टाइम द सेलर में रीसेल द गुड्स। अगर इन्फॉर्म करने के बावजूद भी बायर पेमेंट नहीं देता है, तो in that circumstances unpaid seller will have a right to resell the goods. तो क्या होगा? अगर गुड्स नॉन पेरिशेबल नेचर के और एक्सप्रेसली अनपेड सेलर ने अपने राइट रिजर्व नहीं रखे, तो पहला प्रोसीजर किस तरीके से होगा? अनपेड सेलर बायर को इन्फॉर्म करेगा, कुछ एडिशनल टाइम देगा और बोलेगा कि आप इसका पेमेंट दे दो, नहीं तो मैं गुड्स सेल कर दूंगा। वो एडिशनल टाइम देने में भी बायर ने पेमेंट नहीं दिया तो सेलर वो गुड्स को सेल कर देगा और अपना पैसा रिकवर करेगा। तो अगर ये प्रोसीजर किया है, नोटिस दिया है और गुड्स बेचने के बाद अगर लॉस या प्रॉफिट होता है तो उसका रूल क्या है? इफ द नोटिस ऑफ रीसेल इज गिवन देन इन केस लॉस ऑन रीसेल it can be recovered and in case of profit on resale it can be retained। यानी अगर नोटिस दी है सेलर ने बायर को और गुड्स बेच के थर्ड पार्टी को गुड्स सेल करके अगर लॉस होता है तो दैट लॉस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द बायर। और अगर वो गुड्स बेच के प्रॉफिट होता है, सेकंड बायर को 10,000 रुपए का माल अपन ने सेकंड बायर को 9,000 रुपए में बेचा क्योंकि वो गुड्स बिक नहीं रहे थे, तो 1,000 का लॉस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट बायर। लेकिन अगर वो गुड्स 11,000 रुपए में बिके तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस आई विल नॉट बी एंटाइटल, आई विल नॉट बी लायबल टू गिव दैट 1,000 रुपीज टू द बायर और आई विल बी एंटाइटल टू कीप दैट एंटायर 11,000 विथ मी। मैं प्रॉफिट आपको नहीं दूंगा, लॉस आपसे रिकवर करूंगा, प्रॉफिट आपको नहीं दूंगा। लेकिन ये कब? अगर मैं आपको नोटिस देता हूं और प्रोसीजर फॉलो करता हूं। लेकिन अगर मैंने नोटिस नहीं दी तो क्या होगा? However, the notice of resale is not given, the seller cannot recover the loss. Moreover, if there is any profit, he must return it to the original buyer. अगर मैं नोटिस नहीं देता हूं तो क्या होगा? अगर वो गुड सेकंड बायर को बेच के लॉस होता है तो लॉस रिकवर नहीं कर पाऊंगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट मुझे फर्स्ट बायर को देना पड़ेगा। तो दिस इज अ प्रोसीजर। तो कौन कौन से राइट ऑफ लेन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ लेन अगर आपके पास है तो आप डायरेक्टली राइट ऑफ रीसेल पे शिफ्ट हो सकते हो। अगर राइट ऑफ लेन आपका लॉस हो गया तो आपके पास राइट ऑफ स्टॉपेज है, आप ट्रांजिट में गुड्स को स्टॉप कर सकते हो, फिर से गुड्स अपने पास वापस मंगवा सकते हो और गुड्स को आप रीसेल कर सकते हो। गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर के तो रीसेल की नोटिस देने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने ऑलरेडी पहले इन्फॉर्म किया था कि आपने पैसा नहीं दिया और मैं गुड्स बेच दूंगा तो आपको फिर से इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। और अगर पेरिशेबल नेचर के गुड्स नहीं है और आपने पहले इन्फॉर्म नहीं किया था तो अब इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं गुड्स बेच रहा हूं, और टाइम देना पड़ेगा, रीजनेबल टाइम, कि बायर को एक और चांस दिया जाए। लेकिन वो एक और चांस देने के बावजूद भी अगर बायर पेमेंट नहीं देता है तो सेलर कैन सेल द गुड्स टू द अदर पार्टी एंड रिकवर हिज प्राइस। अगर बेच के उसको प्रॉफिट होता है, पैसा प्रॉफिट देने की जरूरत नहीं है फर्स्ट बायर को, लॉस होता है लॉस रिकवर कर सकता है अगर उसने नोटिस दिया है तो।
नोटिस नहीं दिया है तो लॉस रिकवर नहीं कर सकता है, और प्रॉफिट अगर सेकंड बायर से अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट फर्स्ट बायर को देना पड़ेगा। तो दिस इज अ रूल एज रिगार्ड्स टू राइट ऑफ रीसेल। अब आते राइट अगेंस्ट द बायर। अब सपोज गुड्स ऑलरेडी बायर के पास चले गए, तो यू हैव ऑलरेडी लॉस राइट ऑफ लेन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। नाउ you cannot recover the goods from the buyer. Now what you have to fight for is to recover the price. क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर आपने ऑलरेडी ओनरशिप दे दिया और गुड्स की डिलीवरी भी दे दी है, या ट्रांसपोर्टर को डिलीवरी दी है और बायर इंसॉल्वेंट नहीं है, तो गुड्स बायर के पास पहुंच जाएंगे, इट विल रीच टू द बायर, एंड अगेन you cannot recover the goods from the buyer for price. आप उसकी दुकान में से, इवन दो आपको दिख रहा है कि गुड्स मेरे हैं जिसका इसने पैसा नहीं दिया है, आप उसकी दुकान से वो माल उठा नहीं सकते हो, क्योंकि आपने उस गुड्स की ओनरशिप ऑलरेडी बायर को दे दी थी। अगर आप उसकी दुकान से गुड्स उठा लेते हो तो वो आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाएगा और आपको वो बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो गुड्स की ओनरशिप आपने खुद होके बायर को दे दी थी। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि यू आर एन अनपेड सेलर। ऑलरेडी लॉ ने आपको 3 राइट्स दिए थे, राइट ऑफ लेन, राइट ऑफ स्टॉपेज, राइट ऑफ रीसेल, लेकिन आप ये राइट्स को इस्तेमाल नहीं कर पाए और आपने गुड्स की डिलीवरी ऑलरेडी बायर को दे दिए, तो अब आपके पास क्या कोई राइट्स अवेलेबल नहीं रहेंगे? नहीं, आपके पास राइट्स अवेलेबल है, मगर नॉट अगेंस्ट द गुड्स। यू विल हैव अ राइट अगेंस्ट द बायर। व्हाट आर द राइट्स? सिंपल राइट, रिकवरी ऑफ द प्राइस, कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, रिकवरी ऑफ द डैमेजेस, रिकवरी ऑफ द इंटरेस्ट। कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कब? व्हेन आप उस पर्टिकुलर बायर को गुड्स देने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो गुड्स की डिलीवरी ले नहीं रहा है, यहाँ पे दूसरा केस है, और वो गुड्स आप कहीं और सेल कर सकते हो, दैट मीन्स यू कैन एक्सरसाइज अ राइट ऑफ लेन एंड राइट ऑफ रीसेल, बट दोज गुड्स आर ऑफ स्पेसिफिक नेचर विच वर ऑर्डर्ड बाय द बायर। नाउ these goods are not able to be sell in the market. वो मार्केट में बिक नहीं रहे क्योंकि वो आपने मंगाए थे, वैसे गुड्स मैंने बनाए थे, अब वो मार्केट में बिक नहीं रहे। तो इस सर्कमस्टेंसेस में आप गुड्स देना चाहते हो लेकिन बाहर वो गुड्स की डिलीवरी ले नहीं रहा है। यानी एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या हो गया? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। आप परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बायर उस परफॉर्मेंस को ले नहीं रहा है। तो उस केस में अपन ने क्या देखा था कि प्रोमिसर विल बी एंटाइटल्ड टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर प्राइस एंड डैमेजेस। इन द सेम मैनर यहाँ पे अगर सेलर बायर को गुड्स देने की कोशिश कर रहा है लेकिन बायर गुड्स ले नहीं रहा है, तो सेलर के पास ये राइट्स है कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे और प्राइस रिकवर करे। व्हाट इट सेज? सूट फॉर प्राइस। गुड्स ऑलरेडी बायर के पोजीशन में चला गया और पैसा नहीं दे रहा है, तो सेलर के पास ये राइट्स है कि वो उसके खिलाफ कोर्ट में जाए और अपने पैसे की गुहार लगाए, रिक्वेस्ट लगाए कि पैसा दे नहीं रहा है साहब, आप इसको बोलो। Where the buyer takes the ownership as well as possession of the goods and buyer fails to pay the price of the goods, the seller can file a suit against the buyer for recovery of the price. Suit for damages for repudiation of the contract before the due date of delivery of goods. Before the due date of delivery of the goods, we have seen under the Indian Contract Act anticipatory breach. डेट आने से पहले अगर सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर देता है तो दैट इज एन एंटीसिपेटरी ब्रीच। इन द सेम मैनर हियर द बायर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द गुड्स और बायर कैंसल्स द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डिलीवरी डेट। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच में क्या देखा था कि एग्रीव पार्टी के पास ये दो राइट्स हैं। पहला कि उसी डेट पे वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल समझे और डैमेजेस क्लेम करें। Damages will be equal to the difference between the contract price and the market price। या फिर कॉन्ट्रैक्ट को सबसिस्ट समझे, कैंसिल ना करे
ड्यू डेट का वेट करे और ड्यू डेट पे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे, एंड देन ऑन ड्यू डेट जो भी डिफरेंस इन प्राइस है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस, डैमेजेस को क्लेम करे। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क क्या है कि अगर इन द मीनवाइल दैट पर्टिकुलर सेल ऑफ दोज गुड्स बिकम इलीगल, दैट मीन्स इफ एनी लॉ हैज बीन पास्ड बाय द गवर्नमेंट, then the contract will become void and you will not be entitled to recover any damages for those goods. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, where the buyer repudiates, that means he cancels or put an end the contract before the due date of delivery of good, the seller has the following option, that means anticipatory breach. डेट के आने से पहले बायर ने कैंसिल कर दिया, सेलर को इन्फॉर्म कर दिया कि मुझे वो गुड्स नहीं चाहिए जो मैंने आपको ऑर्डर दिया था। इस केस में क्या होगा, सेलर may not immediately take any action against the buyer and treat the contract as subsisting and wait till the date of delivery of goods. वो ड्यू डेट तक वेट करेगा और ड्यू डेट पे क्लेम करेगा। He may immediately treat the contract as repudiated and bring a legal action against the buyer for recovery of the damage. Thus, the option of bringing the action lies with the seller. He may either wait till the date of delivery of goods arrives, that is a due date, या फिर और bring an action, immediate action for the damages. अगर बायर ने repudiate कर दिया ड्यू डेट के पहले कॉन्ट्रैक्ट, तो सेलर इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और डैमेजेस क्लेम कर सकता है, या फिर ड्यू डेट तक वेट करेगा और ड्यू डेट पे भी अगर बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया तो then he will give still one more chance to the buyer. He will wait up till the due date. He will again call the buyer and will ask him to take the delivery of the goods. Buyer will say that मैंने तो already refuse कर दिया है, तो फिर due date पे seller will be entitled to cancel the contract and claim the damages from the buyer. Third right is suit for damages. Which damages here they are talking about? जो भी नुकसान सेलर का हुआ है, जो भी नुकसान, that loss can be recovered in the form of a damages from the buyer. What it says? Where the seller is ready and willing to deliver the goods to the buyer, but the buyer wrongfully neglects or refuses to accept the goods and pay them, then the seller may bring a legal action against the buyer for recovery of the damages suffered due to non-acceptance of the goods. Here it talks about attempted performance. Seller is ready to give the delivery of the goods ordered by the buyer. Buyer ने जो goods order किए थे, सेलर वो गुड्स की डिलीवरी देने तैयार है, कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो गया और गुड्स की डिलीवरी लेके सेलर बायर के पास आया है। बायर ने उस गुड्स की डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में क्या देखा था कि जहां पे प्रॉमिसर अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए तैयार है लेकिन प्रॉमिसी उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इन द सेम वे यहाँ पे सेलर इज अ प्रॉमिसर, सेलर अपना गुड्स का डिलीवरी देने तैयार है लेकिन बायर उस गुड्स की डिलीवरी नहीं ले रहा है, तो सेलर के पास क्या ऑप्शन बचेगा, वही ऑप्शन बचेगा जो प्रॉमिसर के पास ऑप्शन था। सेलर विल अज्यूम द कॉन्ट्रैक्ट एज कैंसिल. He will assume that from his side the contract is performed because he was ready to perform, and he will claim the damages against the buyer. The value of damages will depend upon के सेलर का कितना लॉस हुआ है, उस लॉस के हिसाब से सेलर will claim a damage against the buyer. अगर वो गुड्स बिकने लायक नहीं है तो फिर पूरा प्राइस विल बी रिकवर्ड टुगेदर विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड. अगर वो गुड्स बिकने लायक है लेकिन लॉस में बिक रहे हैं मार्केट में, तो जो भी डिफरेंस रहेगा दैट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बायर इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस. And last right available with the seller against the buyer will be suit for interest. Apart from this, the seller will also be entitled to claim the interest. जो टाइम का लॉस हुआ है, अगर वो पैसा टाइम पे दे देता था बायर तो वो पैसों से वो कुछ और प्रॉफिट कमा सकता था, तो उस दौरान जो टाइम का लॉस हुआ है वो टाइम के लॉस का seller can recover the interest from the buyer. That interest can be counted from the date of tender of goods or from the date of tender of price. यानी जब कि गुड्स की डिलीवरी दी थी वहां से काउंट हो सकता है, या फिर जब
बायर ने पेमेंट देने का प्रॉमिस किया था लेकिन उस ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं दिया, तो वहां से जितने दिन का डिले होगा उतने दिन का इंटरेस्ट सेलर बायर से रिकवर कर सकता है। एंड कोर्ट विल डिसाइड कि व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इट सेज, द कोर्ट में अवॉर्ड द इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ टेंडर ऑफ गुड्स। द डेट ऑफ टेंडर ऑफ गुड्स यानी जब गुड्स देने की पेशी की है सेलर ने बायर को, लेकिन बायर ने गुड्स लिए या नहीं लिए, तो उस दिन से इंटरेस्ट चार्ज होना चालू होगा। या फिर फ्रॉम द डेट व्हेन द प्राइस इज पेएबल, अगर 7 दिन का क्रेडिट दिया है तो 8वें दिन से इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अवॉर्डेड इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। तो दीज आर द राइट्स अवेलेबल अगेंस्ट द बायर वेयर द राइट ऑफ लेन, स्टॉपेज एंड रीसेल इज लॉस्ट। तो यहाँ पे क्या बोला है, अनपेड सेलर के पास 2 राइट्स, वन अगेंस्ट द गुड्स एंड वन अगेंस्ट द बायर। अगेंस्ट द गुड्स में 2 पॉसिबिलिटी, ओनरशिप ट्रांसफर्ड, ओनरशिप नॉट ट्रांसफर्ड। ओनरशिप अगर ट्रांसफर है तो 3 राइट, राइट ऑफ लेन, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो कौन से राइट्स, 2 राइट, right of withholding the delivery of the goods, that means refusal to give the delivery of the goods, and second one is right of seller, जो भी seller के जो rights है वो सभी rights उसको use कर सकता है। These are the right against the goods. Right against the buyer, 4 rights. First one is suit for price, second one is suit for repudiation of the contract, third one is suit for damages, and fourth one is suit for interest. So these are the rights available with the unpaid seller against the buyer. So these are the important rights available with the unpaid seller against the goods and against the buyer. Hope you have understood the concept. If you have any doubt, please ask me. Bye everyone.